Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss about a detection of a peptide linkage by the Burette test. So, in the previous test, we have discussed that how we are going to detect the presence of proteins and amino acids in a solution. So, we have performed ninhydrin test, but this is the second test for the detection of protein, and this test is about Burette test. So now, before we are going to start our video, I request you to please subscribe to my channel, like my videos, and also press the bell icon to get the notification of all the videos which I have uploaded. So thank you so much for accepting my request and for subscribing to my channel. Now let's start the lecture. So first of all, in the Burette test, you are going to see that Burette reaction is going to take place, and it is extensively used as a delicate test for the presence of protein in the biological materials. So it is very important to detect the presence of protein. For example, in inhydrin test, I have given some pharmaceutical uses of it, and in this application, I have said to you that inhydrin test is going to help you to detect the presence of glucose, for the presence of amino acids in your urine. So that is very important because the presence of protein in some urine and blood, urine is going to show that you have some specific disease. So it is really helpful for the detection of a particular disease. And this Burette test is also a qualitative test and used to detect the protein in bloodstream as well as in other fluids. Okay, so now we are going to start the principle of this reaction. So it is a chemical test used for the detection of presence of peptide bonds in a protein. All of you know that a protein is covalently bound due to the amino acids. Okay, these amino acids join together with a linkage between the carbon and nitrogen bond, and by losing the water molecule, and these peptide bonds are going to form. And you also know that there is two types of peptide bonds: dipeptide, tripeptide. Okay, dipeptides mean having two peptide bonds, and tripeptide mean having three peptide bonds. Okay, so now, in the presence of peptide of a copric ion forms and violet complex in alkaline solution. So you have to take a basic solution, and a violet complex is going to form. Under alkaline conditions, substance containing more than two peptide bonds form a purple color. Okay, more than two peptide bond means it could be a tripeptidic bond compound or could be many. Okay, polypeptidic भी हो सकता है। तो जो भी टू से ज़्यादा होंगे वो क्या देंगे, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स देंगे विद कॉपर साल्ट। ठीक है, लेकिन जो डाईपेप्टाइड्स होंगे, ठीक है, जिनके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड यानी दो से कम या दो होंगे या अमाइनो एसिड्स होंगे, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। सो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि डाईपेप्टाइड्स के अलावा जो है कोई ना कोई प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में या ब्लड में या किसी और फ्लूइड में है या नहीं है। ठीक है, सो ये था इसका प्रिंसिपल कि आप लोगों ने देखा कि ये पेप्टाइड को एक तो डिटेक्ट कर रहा है, दूसरा ये है कि ये किस तरह से अल्कलाइन मीडियम में कर रहा है, और एक वायलेट कम्प्लेक्स ये बनाएगा, और कौन से जो है वो सब्सटेंसेस इसको देंगे। मतलब दो से ज़्यादा जो पेप्टाइड बॉन्ड्स वाला कंपाउंड होगा वो तो ये शो करेगा, बट जिसके दो से कम हैं या दो हैं या अमाइनो एसिड्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। अच्छा, ब्यूरेट सॉल्यूशंस को जो है वो हम लोग बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है कि कंसिडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगी, उसकी कंसिडरेशन दी हुई है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन जो हम लोग देखेंगे उनका है, और फिर ये वॉल्यूम है डिस्टिल वाटर का। ठीक है, तो इस तरह का एक टेबल बना हुआ है, ये मैं बाद में भी आपको दिखाऊँगी। तो अब आ जाते हैं ब्यूरेट सॉल्यूशन के ऊपर। तो ब्यूरेट सॉल्यूशन एक केमिकल जो है वो कंपाउंड है विद अ केमिकल फार्मूला ऑफ दिस। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है, और ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला नहीं है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इट नॉट, इट इज़ जस्ट अ कंडीशन ऑफ टू मालिक्यूल्स ऑफ यूरिया। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें और मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग इस चीज़ को ना देखें। ठीक है, ये जो चीज़ है इसका ना देखें, सिर्फ इस चीज़ को देखें। तो ये एक यूरिया बनता है। ठीक है, सिर्फ, ठीक है, आप लोग इसको नहीं देखेंगे और बाकी चीज़ों को देखें तो ये बिल्कुल यूरिया बनता है, सिर्फ NH2 की कमी होती है। ठीक है,
अब यहाँ इस एक यूरिया के मॉलिक्यूल के अंदर आपने दूसरा यूरिया का जो हाफ मॉलिक्यूल है, मतलब एक अमाइनो ग्रुप हटा के और बाकी वाला जो बचता है वो आपने साथ अटैच किया हुआ है। तो बिल्कुल भी मुश्किल इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट दो यूरिया के मॉलिक्यूल्स का कम्बो है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं और अब हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ वाइट सॉलिड सोलेबल इन हॉट वाटर, ठीक है। तो ये अब जो ब्यूरेट सॉल्यूशन है उसके बारे में ये बता रहे हैं, और जो ब्यूरेट हमारे पास आया उसके बारे में बता रहे हैं कि ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है और ये एक सॉलिड कंपाउंड है जो कि हॉट वाटर में सोलेबल होता है, ठीक है। द टर्म ब्यूरेट इज डिस्क्राइब अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप दिस। तो ये एक पूरी फैमिली है, ठीक है, जिसमें इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो कार्बोनाइल ग्रुप और CH बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन जो है वो बाहर है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसका फंक्शनल ग्रुप याद करना है कि दो कार्बोनाइल ग्रुप और NH2 ग्रुप के दो ग्रुप हैं, बाहर एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। थर्स द डाई मिथाइल ब्यूरेट, उसका फॉर्मूला इस तरह से होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बस एंड में मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए हुए हैं, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है। दो कार्बोनाइल ग्रुप हैं, इधर NH4 आ गया, इधर NH इधर NH, ठीक है। और फिर उसके बाद डाई मिथाइल बनाने के लिए एंड में दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दिए। अब जो कॉपर एटम है ब्यूरेट सॉल्यूशन के अंदर, यानी कॉपरिक सल्फेट के लिहाज से वो प्रेजेंट होता है, वो रिएक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। और फिर कलर चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता के आ चुकी हूँ कि एक वायलेट कलर ने प्रोड्यूस होना है। तो एक्चुअली जो कॉपर आइंस होते हैं इस ब्यूरेट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं और कलर देते हैं। सो एक डीप वायलेट कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन अगर एक लाइट पिंक कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर ब्यूरेट के प्रिपरेशन दिखा रहे हैं कि दो यूरिया के मालिक्यूल्स जो हैं ये आपस में मिले हैं और इन दो नाइट्रोजन और H की जगह आप एक सिर्फ NH लिख देंगे और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहा है। और एक अमोनिया जो है वो आप देख सकते हैं कि निकल रहा है इस रिएक्शन से। So Berry reaction can be used to calculate the concentration of protein because the peptide bonds occur in same frequency as per amino acids, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि ब्यूरेट रिएक्शन को हमने क्वालिटेटिव भी पीछे रिएक्शन में कहा था, तो ये क्यों कह रहे थे हम लोग कि इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है। किसकी कैलकुलेशन में? प्रोटीन्स की, पेप्टाइड बॉन्ड्स की, क्योंकि हमें पता है कि जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे उतने अमाइनो एसिड्स होंगे। तो इससे हमें ये भी पता लग सकता है कि एक प्रोटीन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, मैं प्रोटीन का मैं आपको देती हूँ, तो आप ब्यूरेट टेस्ट के ज़रिए से ये भी पता लगा सकते हो कि अगर ये वाला प्रोटीन है तो ये कितने अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो ये ब्यूरेट टेस्ट की जो है वो सिग्निफिकेंस आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो द इंटेंसिटी ऑफ द कलर एंड द अब्जॉर्प्शन अकर एट 540 nanometer and is directly proportional to the protein concentration according to बेयर-लैम्बर्ट लॉ। तो ये बेयर-लैम्बर्ट लॉ है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो कलर जितना ज़्यादा होगा ये प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पिछला टेस्ट जब मैंने आपको नील हाइड्रेट नहीं, जब मैंने आपको बेनेडिक्ट टेस्ट करवाया था जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन का टेस्ट था, वहाँ पर भी हमने यही देखा था कि कलर की जो इंटेंसिटी आती है टेस्ट सॉल्यूशन की, वो डिपेंड कर रही थी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग कार्बो की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि कलर डिपेंड कर रहा है कि कितना प्रोटीन है, कितने अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं। जितने ज़्यादा होती जाएगी कंसंट्रेशन उतना कलर ज़्यादा इंटेंस होगा, ठीक है। जितना कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतना लाइट कलर होगा, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं। So, between serum and albumin, we are typically obtained a linear relationship between the absorption and amount of protein over the ranges this, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको इक्वेशन जो है वो देखने को मिल रही है जिसमें वही चीज़ हो रही है कि दो यूरिया के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और ये ब्यूरेट और अमोनिया जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिखाया जा रहा है कि कॉपर आयन किस तरह से प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हो कि आप इन दो को अगर हटाओ और बाकी दो स्ट्रक्चर देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो, तो ये जो कॉपर वाला पार्ट है अगर आप इसको हटा के देखो तो बाकी दोनों का स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक कार्बन है
उसके साथ 2 ऑक्सीजन जो है वो अटैच है। यहाँ पर कार्बन के साथ R ग्रुप है और यहाँ पर N ग्रुप अटैच है। इसके साथ ही कॉपर का आयन है, बिल्कुल सेम यही का यही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। सो यहाँ पर यही ब्यूरेट रिएजेंट की जो है वो डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से कॉपर का आयन इसके अंदर फिक्स होता है। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एसे हैज़ नॉट बीन अवेलेबल रिलायबल फॉर द अमाउंट बिलो द 0.25, यानी आप लोग इतना कम भी अमाउंट नहीं ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी अमाउंट नहीं ले सकते हैं। सो जो मिनिमम अमाउंट जो आप लोग नहीं ले सकते हैं वो 0.5 mg है, इससे ज़्यादा कम आप नहीं डाल सकते हैं। फिर जो ब्यूरेट रिएजेंट है वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं। सो अब ब्यूरेट रिएजेंट को आपने प्रिपेयर करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो आप डिज़ोल्व करेंगे 1.50 ग्राम्स ऑफ कॉपर टू सल्फेट, ठीक है, डिस्टल वाटर के अंदर। उसके बाद आप सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट डाल देंगे, पोटाशियम आयोडाइड भी साथ डालेंगे और NaOH का सोल्यूशन भी आप डाल रहे हैं और टोटल वॉल्यूम आप डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि हमने डिस्टल वाटर इसके अंदर ऐड किया है। स्टोर्ड जो है वो हमने इसको पॉलीइथाइलिन की बोतल में और रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया हुआ है और दिस रिएजेंट की स्टेबल है, 6 मंथ तक की जो है वो इसकी स्टेबिलिटी है। इसके अलावा आप इसके अंदर 60 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर और स्टोर करेंगे इसको इसके अंदर। ये मैंने आपसे रिपीट कर दिया। सो इस तरफ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखी हुई हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी है, किस तरह की ऑब्जॉर्प्शन हो रही है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उस तरह से ही ऑब्जॉर्प्शन का कर्व जो है वो स्ट्रेट जा रहा है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होते हैं। तो डाइल्यूट कुछ प्रोटीन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं 20, 40, 60, 80 और 100 ग्राम पर लीटर के। सो उसको हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि हमारे पास 6 ml NaOH का सोल्यूशन है, फिर हमारे पास 6 ml और 5% NaOH का सोल्यूशन है और यहाँ पर भी वही चीज़ हमारे पास आती है। ड्रॉप्स के तरीके से हम लोग इसके अंदर ब्यूरेट रिएजेंट डाल रहे हैं और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि प्रोटीन प्रेजेंस है। इंडिकेट ये भी यही कर रहा है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा है कि गिलेटिन जो है वो आपके पास प्रेजेंट है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वार्म अप करना है स्पेरोमीटर को 15 मिनट्स के लिए। सो बिफोर स्टैंडर्ड ब्यूबिन जो सीरम है अल्ब्यूमिन का, वो आपने कैलिब्रेट करना है उसकी एब्जॉर्प्शन को और फिर आपने यूज़ करना है 5 ml ऑफ द रिएजेंट को डालना है और 1 ml आप कोई भी सैंपल ले लेंगे जिसके अंदर 0.5 से 20 mg जो है वो प्रोटीन लाजमी होनी चाहिए। फिर आप प्रिपेयर करेंगे एक रेफरेंस ट्यूब जिसमें 1 ml बफर होगा। आप पॉसिबल करेंगे कि डाइल्यूट करें इस सॉल्यूशन को और बफर के साथ और रेंज ऑफ डाइल्यूशन होनी चाहिए। आप यूज़ करेंगे 1 ml ऑफ सैंपल को और उसके अंदर ऐड करेंगे 9 ml ऑफ ब्यूरिन रिएजेंट हर ट्यूब के अंदर और 20 मिनट्स के बाद आप उसका कलर देखेंगे और फिर आपने उसकी एब्जॉर्प्शन को रीड करना होगा। एक सेकंड प्रोसीजर भी है इसका और वो ये है कि आपने 6 ml लेना है 5% सोल्यूशन ऑफ NaOH। फिर आपने ऐड करना है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर का सोल्यूशन, जो आपके पास कॉपर का सोल्यूशन है वो ऐड कर दो, मिक्स करो हम दोनों को। उसके बाद 6 ml आपने जो प्रोटीन का आपका सैंपल होगा वो आपने ऐड कर देना है। फिर आपने कलर को देखना है कि कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर ब्लू कलर ऑफ कॉपर चेंज होता है पर्पल में, ठीक है, तो आप कह दोगे कि आपका प्रोटीन प्रेजेंस है। सो आई थिंक कि प्रोसीजर नंबर 1 से ज़्यादा इसी प्रोसीजर नंबर 2 है और मैंने प्रोसीजर नंबर 2 की ही डायग्राम आपको बना के दिखाई है कि आप सबसे पहले NaOH डाल रहे हो, उसके बाद आपने इसके कॉपर का सोल्यूशन डालना है और ब्यूरेट रिएजेंट को डालना है और प्रोटीन का सैंपल आपने अपना डालना है। इसके अलावा बाद जो आपका ब्लू कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जो प्रोटीन है वो पर्पल वायलेट सा कलर दे रही है, जबकि जो पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस होते हैं ये भी प्रोटीन के ही डेरिवेटिव्स हैं। उन प्रोटीन की जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसके रिजल्ट में ये कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं और वो पिंक कलर देंगे, ठीक है। प्रोटीन पर्पल कलर देगी तो वो पिंक कलर दे रही हैं। इसके अलावा अगर आप जिलेटिन को देखें तो वो ब्लूइश कलर देता है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो ये ब्यूरेट जो है ये नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन का सोर्स आ जाता है और जो कि प्रोटीन के अंदर जो है वो फीड अप हो सकता है। इसके अलावा अगर लेस फेवर्ड देन द यूरिया इज ड्यू टू हाईली कॉस्ट, ठीक है, तो यूरिया से ज़्यादा लेस फेवर्ड होता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ये महंगा होता है। इसके अलावा लो डाइजेस्टिबिलिटी होती है, इसलिए डिक्रीज़ करता है रेट ऑफ
ammonia acid toxicity. It is used to check the quantity and quality of amino acids in medicine. तो मेडिसिन के अंदर कितनी अमाइनो एसिड है उसको भी चेक करने के लिए ब्यूरेट जो है वो टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस आ गई थी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसपे हमने ब्यूरिट रिएजेंट के बारे में पढ़ा और इसके हमने देखा कि ये किस तरह से यूज़ आ रहा है और किस तरह से हम इसमें से अमाइनो एसिड के कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।